हेलो माय व्यूअर, आज भी क्लास है मैथमेटिक्स की और चैप्टर का नाम होगा मल्टीपल एंगल। विनय क्लासेस पर ये मल्टीपल एंगल के अंदर में जो कंसेप्ट है उसके पहले ये जानिए कि ये क्या है। तो 10.8 ये हो गया कंसेप्ट 10.8 और इसको बोल सकते हैं पहले TMH, जिसमें कि 28 चैप्टर है और इसी TMH से मतलब जो छोटा होगा वो आ गया ट्रिगोनोमेट्री। इससे छोटा आ गया ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। और इससे भी छोटा आ गया मल्टीपल एंगल। दूसरे ढंग से बोल सकते हैं कि मल्टीपल एंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी चैप्टर के अंदर का है और ये खुद ट्रिगोनोमेट्री के अंदर का है और ये TMS के अंदर में, इसी में है चैप्टर 28 और इसमें है चैप्टर 4। और ये जो नंबर होगा TMH के बुक के मुताबिक 10वां चैप्टर ही मेरा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है और उस 10 के अंदर में फिर 11 कॉन्सेप्ट है। तो 8वां नंबर में है मल्टीपल एंगल, 7 में था ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला जो कंप्लीट हो गया है 10.7 और कंपाउंड एंगल भी 10.6 कंप्लीट हो गया है। तो 10.6 कंप्लीटेड, 10.7 कंप्लीटेड और 10.8 स्टार्ट हुआ है मल्टीपल एंगल और इसके बाद लाएंगे हम सब मल्टीपल एंगल। और ये लिखने का मतलब है पूरे TMH में 28 चैप्टर्स है और उस 28 चैप्टर्स में ट्रिगोनोमेट्री 4 चैप्टर है। कौन कौन? पहला है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, वही चल रहा है। दूसरा में आएगा जनरल वैल्यू या ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन और तीसरा आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और चौथा में आएगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो इस तरह से ये मल्टीपल एंगल होता क्या है पहले ये समझा जाए कि व्हाट इज मल्टीपल एंगल। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि इफ देयर बी एन एंगल A, if suppose there be an angle A which is given to you, then the multiple angle of A is defined as NA, where n may be 2, 3, 4, 5, 6 or lastly n also. Suppose you have one angle A and this angle A is given to you, and suppose another angle which is your NA. So this NA angle is called your multiple angle of the given angle A. Example, let angle A is given and n is here 2, so NA will convert into 2A. Similarly, if you put the n as 3, then this will be 3A. Similarly, suppose n is 4, so this formula converts 4
4a. Similarly, if you put the 5, then 5a, 6, then 6a, and lastly na. So all these angles are your multiple angle of the given angle A. Hence, angles 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, na, all are termed as multiple angle. Multiple angle of the angle A. So this is the concept of multiple angle, and when we will move to the submultiple angle, then this NA will be represented by A by N, and by putting N equal to 2, 3, 4, 5, this converts as A by 2. If N is 3, then A by 3. If N is 4, A by 4, and so on, A by N. So all these angles are called submultiple angle. Means if the original angle is A, suppose original angle is A, and you are writing multiplication of the angle A with a whole number n, non-zero whole number. Means non-zero means should not be zero and should not be unity also. So if we start from 2, 3, 4, 5, 6, 7, so at that time this is multiple angle. This is called multiple angle and this is called submultiple angle. Submultiple means you have to divide as A by N, and multiple you have to multiply. So when you multiply by N, so at that time multiple. If you divide, that's submultiple. And more or less formula for multiple and submultiple is the same. So if you understand multiple, so without giving the answers for the formula of the submultiple, you can write instantly. But still I will explain about the submultiple in the another class. But here a little bit I have given the concept that what is the difference between multiple and submultiple. In case of multiple, you have to write NA, and in case of submultiple, you have to write A by N, where N is the value 2, 3, 4, 5 whole number. And here these examples are multiple angle and these examples are submultiple angle. But we will not discuss at this time submultiple. In the next video, we will come to the concept of the submultiple. But here try to understand the concept of multiple angle. And today discussions of the multiple angle will be associated with the 2A, strictly 2A. And in the next video we will discuss about the 3A. Okay, no need to discuss 4A, 5A, 6A. All this will come in the application. Only formula for the 2A and 3A. So half of this one multiple angle will be discussed in the this video up to 2A, and in the next video I will come for the 3A and not 4A, 5A, 6A. Okay, so now it is the turn to take the screenshot. ठीक है, तो अभी तक मैंने बताया मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल किसको बोलते हैं, और फोकस कर रहे हैं अभी हम मल्टीपल एंगल पर। और अब इसके आगे की कहानी। इसके भी हाई लेवल जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में हम बताएंगे, अभी नहीं। तो अभी पहले लो लेवल चलेगा इसका, जो जरूरी है स्टार्टिंग में। तो पहला फार्मूला है हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो
ऑफ एंगल 2A। Trigonometrical ratio of angle 2A. The first would be your sin 2A, and these answers we have to find. So suppose you have not studied these topics, तो आप अपना मस्तिष्क लगा सकते हो, थिंक कर सकते हो। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन से ही तो थिंकिंग की एबिलिटी बढ़ती है, क्रिएशन बढ़ता है। और कोशिश करो कि भाई 2A का आंसर्स कैसे निकालेंगे। तो अपने भी कर सकते हो, और जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए लॉजिक दे रहे हैं हम कि इसके पहले हम लोग पढ़े हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, और इसके पहले पढ़े हैं कंपाउंड एंगल। तो कंपाउंड एंगल की मदद से ये निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? तो यहाँ लिखा हुआ है sin 2A। तो जब sin 2A का हमको निकालना है और कुछ नहीं सूझ रहा है, जैसे कोई 9-10 का स्टूडेंट है, उसको sin 2A का फॉर्मूला बोलेंगे तो लॉजिकली सोच ही नहीं सकता कि कैसे निकालेंगे। वो तो पढ़ा है सिर्फ sin A, cos A, tan A, cot A, sec A, cos A, ये सब पढ़ा है। तो नेचुरली वो sin 2A का फॉर्मूला नहीं बता सकता। लेकिन अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएगा कि नहीं 2A को लिख दें हम A प्लस A, और काश हमारे पास कोई एक फार्मूला होता जिसमें आता कि साइन ऑफ A प्लस B क्या होता है। तो पहले अगर उसके मस्तिष्क में अगर ये बात आई कि साइन A प्लस B क्या होता है, तो इसी के हेल्प से A वाला आंसर्स निकाला जा सकता है। लेकिन पहला लॉजिक ये चाहिए, अर्थात कंपाउंड एंगल का फार्मूला अगर उसको जानकारी है किसी भी तरह से कि नहीं साइन A प्लस B तो हम जानते हैं, तो ऑब्वियसली वो मल्टीपल एंगल का साइन 2A निकाल लेंगे। लेकिन अगर कोई कहेगा नहीं 10 क्लास का बच्चा तो साइन A प्लस B भी नहीं जानता है, और आप तो बोल रहे कि साइन A प्लस B पहले जानो ये क्या होता है, क्योंकि 9-10 का बच्चा के लिए ये भी मुश्किल है कि साइन A प्लस B क्या होता है। लेकिन अगर वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा तो अपनी किताब को NCERT का 10 क्लास का किताब या ICSE का 9-10 का किताब है, उसमें कहीं खोजेगा तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं पर, किताब में लिखा रहता है फॉर्मूला। लेकिन वही आपको सर्च करना पड़ेगा। जब सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, 100% श्योर है, आप खोज के देख लोगे। इवन ये sin 2A sin 3A का भी फार्मूला मिल जाएगा 10 क्लास की किताब में, खाली ढूंढ के देखो। और ये फार्मूला sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B होता है। अब आप बोलोगे नहीं अरे 10 में तो है ही नहीं, तो कहाँ से जानेगा? ठीक है, 10 वाला नहीं जानेगा, 11-12 वाला बच्चा भी तो इसका प्रूफ नहीं जानता। तब दोनों का लेवल तो एक ही हुआ कि वो 11-12 में आने के बाद भी इसका प्रूफ नहीं जान रहा। और 10 वाला तो ठीक है नहीं पढ़ा है बोलते हो, लेकिन 10 क्लास का NCERT बुक उठाइए या जो भी किताबें 9-10 का ICSE वाला, उनके भी कहीं ना कहीं में लिखा हुआ रहता है कि ये एक आइडेंटिटी है और एंगल A कुछ ना कुछ दे देगा। जैसे दे देगा, बोलेगा कि ये 30 डिग्री है, B दे देगा 60 डिग्री है, बोलेगा ये वाला फार्मूला को वेरीफाई कीजिए इसकी मदद से। तो जो बच्चा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 30 डिग्री का, 45 का, 60 का, 90 का, 0 का जानता है और ये कहीं आइडेंटिटी दिया हुआ है, अब बोलेगा वेरीफाई कीजिए मतलब ये सही है या नहीं है। तो कोई भी 2 एंगल ले लिया, मान लो 30 और 60, पुट करके देख लो आंसर आ जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला दिया हुआ 10 क्लास की किताब में। हाँ, 10 क्लास का प्रूफ नहीं जानता है, तो 10 क्लास का बच्चा प्रूफ नहीं जानता तो 11-12 भी तो नहीं जानता है। तो कोशिश करो कि 9-10 के बच्चे हों या 6-7 के हों या 11-12 को, इसका प्रूफ कैसे होगा ढूंढिए। लेकिन ये प्रूफ का मतलब ये नहीं हुआ कि कहीं किताब में देख लिया, वहाँ से चोरी कर लिया, पढ़ लिया और तब लिख रहे हैं कि सर हमको मालूम है। अरे आपने चोरी किया है, आप लिखोगे तो हम बता देंगे कि हाँ चोरी किया, बिना चोरी किए तो कैसे कर लिया। तो लगाइए दिमाग कि बिना चोरी किए हुए, बिना कहीं ड्राइव किए हुए अपने करो, तब मजा आएगा। इसी तरह कोशिश करोगे, जो हम पहले भी एक बार वीडियो में दिए थे कि sin 15 का ज्योमेट्री से बिना कंपाउंड एंगल का फार्मूला लगाए हुए कोशिश करोगे। हम इसका कभी आंसर देंगे कि sin 15 का बिना कंपाउंड एंगल का फार्मूला लगाए हुए कैसे मैंने 9-10 के लेवल से या 6-7-8 के लेवल से बना सकते हैं।
तो बताएंगे। तो अभी सीधा समझो कि लॉजिक मैंने दिया कि साइन 2a कैसे निकलेगा, तो साइन 2a निकलेगा साइन a प्लस ए, और साइन a प्लस ए का तभी निकलेगा जब हम साइन a प्लस बी का जानेंगे। और साइन a प्लस बी का 19 के किताब में ये मिलेगा कहीं ना कहीं। कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर रहता है ये सब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री का चार्ट दिया रहता है। लोग बोलता है ना 0 1 2 3 4 लिख दो, 4 से डिवाइड कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। अरे वो तो ड्राइवेशन ही ना हुआ, वो तो याद करने का कंसेप्ट हुआ। ड्राइव करो बेसिक से, एकदम ज्योमेट्री से, और उसी चैप्टर्स में ए वाला फार्मूला सब मिलेगा। और उसी चैप्टर में साइन 2a, साइन 3a, साइन 4a, कॉस 3a, कॉस 4a का फार्मूला भी मिलेगा, और वहाँ भी इसी तरह का वेरिफिकेशन होगा। कहीं लिख देगा इस टाइप का, जैसे हम लिख दे रहे हैं, लिख देगा कि साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए, ऐसा लिखा हुआ रहेगा 19 के किताब में। अब बोलेगा कि ठीक है, इसमें कोई एंगल अपने मन से पुट कीजिए। आप तो 0 डिग्री जानते हो, 30 जानते हो, 45 जानते हो, 60 जानते हो, 90 जानते हो। इसमें से कुछ 2 एंगल ले लो, आप पुट करके सॉल्व करके देखो LHS RHS प्रूव है कि नहीं। ये सब तो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मीन्स व्हाट? दिस इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और जो इक्वेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, उसका आंसर लिमिटेड होता है। ये अंतर है आइडेंटिटी और इक्वेशंस में। जो कभी आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में, तब हम और डेप्थ में बताएंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को ट्रिक्स में कैसे बनाया जाता है, और एक वीडियो में मैंने थोड़ा बताया भी है। तो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी लॉजिक से। तो इस लॉजिक से आ जाएगा पहला फार्मूला साइन 2a का, कि उसको नहीं पता है तो पहले लिखेगा कंपाउंड एंगल का जो फार्मूला है, कि हम तो जानते हैं कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये कैसे आया? तो अभी हम इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं, ये होता है कंपाउंड एंगल का चैप्टर से हम लोग इसको लिखे थे। पहला फार्मूला कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। यही एक मंत्र है कंपाउंड एंगल का, पहला मंत्र है, पहला सूत्र है। और इसी में पुट कर देंगे, पुटिंग a इक्वल टू बी, तो इसका LHS क्या हो जाएगा? साइन ऑफ a प्लस a। यहाँ क्या हो जाएगा? साइन a, यहाँ हो जाएगा कॉस a, क्योंकि a और b बराबर है। a को a लिखना है और b को a लिखना है, मैंने सबको a में कन्वर्ट कर दिया। और ये कॉस a का कॉस a रहेगा, ये नहीं कि कॉस a को कॉस b लिख दिया, नो, खाली a के टर्म में लिखना है। फिर यहाँ साइन b है तो आ गया साइन a, और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा साइन a प्लस a 2a हो गया। और ये देखेंगे साइन a इंटू कॉस a, और ये भी वही है, आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन हम लोग जानते हैं कि a इंटू बी अगर रहता है तो b इंटू a लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन, ये लॉ का नाम है कम्यूटेटिव लॉ, है ना, कम्यूटेटिव लॉ, है ना, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स है a और b, और उसका कम्यूटेटिव लॉ लिखना है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। तो आ गया a इंटू बी बराबर b इंटू a। तो इसीलिए यहाँ पर भी cos a इंटू साइन a को लिख सकते हैं, साइन इंटू cos a। तो इसलिए आ गया ये कि दोनों सेम है, तो साइन a इंटू कॉस a, यहाँ भी साइन इंटू कॉस a, तो आ गया 2 साइन a इंटू कॉस a। कैसे? ये पूरा आंसर को x मान लिए, तो ये भी तो x है, तो x और x मिलकर 2x हो गया। तो इस तरह से साइन 2 का फार्मूला ड्राइव हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो आ जाएगा कि साइन 2a जो कि 2 साइन a इंटू कॉस a है, तो इसी में लिख देंगे कि 2 साइन a
इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई 1। अपने मन से 1 लिख दिए, यहाँ से यहाँ स्टेप आ गया। और 9-10 में पढ़े हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर उसी का यूज करेंगे, तो लिख देंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। चाहते तो लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी, लेकिन हमने जानबूझते थे थोड़ा सा ऑर्डर में बदल दिए। अब इसके बाद क्या, इसको हमको tan के टर्म में चाहिए, तो इसके बाद का स्टेप यहाँ पर लिखते हैं। क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, किससे, तो डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर ए, और इसमें भी लिख देते हैं वही कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये पूरे को फिर डिवाइड कर देंगे होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब स्टेप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक कॉस ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 साइन ए बाई कॉस ए, 2 साइन ए बाई कॉस ए, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर है 2 टर्म है और ये कॉस स्क्वायर पूरा में डिवाइड हो रहा है, तो कैसे होगा, जैसे लिखते हैं हम लोग कि a प्लस बी बाई सी को a बाई सी प्लस बी बाई सी। ऐसा लॉजिक है, जूनियर क्लास में पढ़े हो 3, 4, 5 में कि जब भी फ्रैक्शन को सॉल्व करते थे तो इस टाइप का आता था। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए वो 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर उसको इसे लिख देते हैं। इतना आ गया, मतलब पहला स्टेप था साइन 2a इतना होता है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और 1 को कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिए, तो एक तो कॉस तो कट गया, तो बचा 2 साइन ए बाई कॉस ए, ये स्टेप, और यहाँ कॉस स्क्वायर इससे कट जाएगा और ए वाला इससे कट जाएगा, कैसे कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी बराबर इतना। हाँ, भूल के भी ऐसा ना करें जिसमें रहेगा, समझ लो नीचे में रहेगा x प्लस वाई ऊपर में z, तो आप इसको भूल के भी नहीं लिखोगे कि z बाई एक्स प्लस z बाई वाई, ये रॉन्ग कंसेप्ट है, ये नहीं चलेगा, है ना। इसलिए बेहतर है इसको ना ही लिखा जाए, नहीं तो कंफ्यूजन चालू। हमेशा ऊपर में टर्म्स होना चाहिए ऐड सब्ट्रैक्ट, और नीचे में एक टर्म है सी कॉमन, तब अलग अलग कर सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ भी किया गया है। 2 टर्म था ऊपर में और नीचे एक टर्म था, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो कॉस का मिलकर 1 हो गया, और ये डिवाइड करके इतना लिख दिया। फिर जूनियर क्लास में पढ़े हैं कि साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, इसलिए इसको लिख सकते थे 2 tan ए, यहाँ डिवाइड किया जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस तरह से हम लोग चालू किए थे यहाँ से अपना जर्नी साइन 2a से, और चलते चलते पहले पहुँचे थे पहला पड़ाव में 2 साइन इंटू कॉस से, और इसी को आगे बढ़ के 1 से डिवाइड किए, फिर 1 को 10 क्लास के कंसेप्ट से लगा दिए कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर इसको कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिए, फिर इसको सॉल्व करने से यहाँ तक पहुँचा, इसलिए फाइनली साइन 2a का आंसर ये वाला आंसर हो जाएगा। तो उस स्टेप को लिख देते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ए वाला आ गया फार्मूला नंबर 2। और अब क्या करेंगे, इसको कंपाइल कर देते हैं फ्रॉम रिलेशन 1 and 2, फ्रॉम रिलेशन 1 and 2। क्या कंपाइल करेंगे कि एक फार्मूला ये होगा और दूसरा फार्मूला ये होगा, तो उस फार्मूला को यहाँ जमा कर देते हैं। तो पहले लिखेंगे साइन 2a, एक फार्मूला हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, एक फार्मूला हो गया।
ठीक इसके नीचे में ही ए वाला लिख देते हैं, ए वाला फॉर्मूला। तो यहाँ sin 2a कॉमन है और ये वाला उतार देते हैं, तो आ जाएगा 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, और इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। और इसको एक तरह से नंबर दे देते हैं a, माने कॉम्पैक्ट में, माने इन शॉर्ट ये एक तरह से ब्रीफ में आ गया। इन शॉर्ट कोई अगर इतना देखना नहीं चाहता है कि कैसे sin 2a का निकालना था पहले, तो कैसे कंपाउंड एंगल का फार्मूला सोचे, पहला स्टेप, फिर ए और बी को बराबर किए, दूसरा स्टेप, और फिर उसके बाद ए और बी को पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये तीसरा स्टेप, फार्मूला आ गया एक नंबर। फिर इसी में एक से डिवाइड किए, फिर उसके बाद ये वाला लिखे, फिर cos स्क्वायर ए से डिवाइड किए, फिर सॉल्व किए, तो ये आया सेकंड फार्मूला। और रिलेशन 1 और 2 से पहला sin 2a 2 sin a cos a ये वाला था, वो वाला छाप दिया यहाँ पर। और फिर दूसरा छापना था sin 2a का, तो एक ही बार लिखे sin 2a, एक बार यहाँ से इसको पढ़ेंगे और अब पढ़ेंगे यहाँ से इसको, तो आ गया sin 2a बराबर 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इस तरह से tan के टर्म में आ गया और ये sin 2a का फार्मूला हो गया। और अब इसके बाद हम बताएंगे cos 2a का फार्मूला। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं पूरा ही मिटा दूंगा। अब इसके बाद हम cos 2a का पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखा जाए आगे, इसको मिटाते हैं। अब आएगा दूसरा फार्मूला cos 2a का। तो देखा जाए सेकंड फार्मूला अब ला रहे हैं कि cos 2a का आंसर्स क्या होगा। तो इसका भी जवाब वही होगा कि सबसे पहले हम लोग कंपाउंड एंगल के फार्मूला से, एक था कि cos a प्लस b, माइनस वाला नहीं चलेगा, खाली प्लस वाला चलेगा। एक नंबर में था sin a प्लस b का, 3 नंबर में था cos a प्लस b का, तो इसी 3 नंबर का यूज करेंगे। तो क्या होगा, याद ही है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। और अब इसमें पुटिंग a इक्वल टू b, तो क्या होगा, इधर में आ जाएगा cos a प्लस a, इधर में आ जाएगा cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a। और इसी को और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा नीचे में cos 2a, और cos स्क्वायर a हो जाएगा cos a इंटू cos a, x इंटू x स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी हो जाएगा cos स्क्वायर a, यहाँ जाएगा sin इंटू साइन वाला, तो sin स्क्वायर a। इस तरह से ये एक फार्मूला सामने में आ गया। इसको भी हम इसके लिए 1 नंबर लिख रहे हैं। अब इसको भी मंत्र जैसा रटो, और क्या जो हम बोलते रहते हैं मंत्र, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर a, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर a, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर a, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर a, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर a। मैंने 5 बार मंत्र पढ़ा, आप इसको पढ़ते रहिए, जैसे मंत्र आदमी पढ़ता है 108 बार, कोई उससे भी ज़्यादा बार, तो पढ़ते रहिए, एक दिन अपने आप याद हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ और फार्मूले हैं जो इसी से ड्राइव हो। कैसे, तो हमारे पास लॉजिक है कि cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर है। और अब मेरा मन हुआ कि नहीं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्या चीज़ में, खाली साइन में। तो कैसे साइन में होगा, तो एक फार्मूला जानते हो लोग, cos का थीटा प्लस साइन का थीटा इक्वल टू 1। तो इसलिए इस cos का थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा,
तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जगह का कमी है इसलिए हम एक ही लाइन में लिख रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर ए के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ए वाला वैसे ही उतार दीजिए। ये कैसे लाया गया, तो इसका कंसेप्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर ए वाला साइन स्क्वायर थीटा ऐसे उतार दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इस तरह से फार्मूला तैयार हो गया कि cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो उसको लिख देते हैं यहाँ पर, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये एक नया फॉर्मूला और आ गया, इसको 2 नंबर लिख देते हैं। इसको भी उसी तरह फॉर्मूला रटी है जैसे हम सुनाते रह रहे हैं। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो 5 बार हम बोल रहे हैं। अभी घर में 5 की जगह 10 बार बोलिए, अपने आप याद हो जाएगा, बिना ड्राइव से कभी याद हो जाएगा। और ये क्लास 3, 4, 5 का बच्चा भी चाहेगा तो याद कर सकता है, बशर्ते उसको खाली इतना एबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं हमको सीखना है, आगे बढ़ना है और अच्छा करना है। उसी तरह अगेन अब हम चाहते हैं कि इसको हम खाली साइन के टर्म में लाए ना, तो साइन के टर्म में ना लाए, किसके टर्म में लाए, कॉस के टर्म में लाए। तो वो कैसे आएगा तो वो भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला और मिल रहा है, वो भी हम लिख देते हैं। वो क्या मिल रहा है देखा जाए। जब ये एक प्रकार का इक्वेशन है तो क्यों नहीं, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और इसका आंसर ये निकला, तो हम लोग इस इक्वेशन को ऐसा सॉल्व करें कि 2 साइन स्क्वायर ए को सब्जेक्ट बनाएं, इसी आंसर को निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए वाला टर्म को उठा के इधर ला देंगे, तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए एलएचएस में आ गया। तो स्वाभाविक है इसको उठा के एलएचएस में ले जाएंगे, तो हो जाएगा कि इधर ला रहे हैं पहले, माइनस वाला इधर आएगा तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। जैसे 2 साइन स्क्वायर ए आ गया इधर में, तो अब ये उठा के उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। तो 1 माइनस कॉस 2a, तो ये भी एक तो फार्मूला आ गया कि 2 साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस 2a बोलते हैं। और चाहेंगे तो 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। तो इसलिए एक्स्ट्रा फार्मूला लिख दिए, इसलिए इसको बॉक्स में नहीं बना रहे हैं, इसी से ड्राइव है ये। अब आया जाए ये आंसर जो कि दूसरा निकाले थे खाली साइन के टर्म में, अब निकालेंगे इसी cos 2a का आंसर खाली cos के टर्म में। और बेसिक इसी को लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि हम लोग जान रहे हैं कि cos 2a का आंसर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। और अब इसको स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो अब हमको चाहिए cos के टर्म में, और जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा साइड में लिख देते हैं, नहीं तो पता चलेगा कैसे लिख रहे हैं सर, समझ में नहीं आया। यही आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमको खाली कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ए वाला तो कॉस है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये साइन स्क्वायर ए को लिखना पड़ेगा कॉस के टर्म में, उसी से यूज करेंगे। कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर यहाँ से निकाल देते हैं, कॉस स्क्वायर ए का आंसर होगा, इसको उठा उधर ले जाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। लेकिन सॉरी हमको तो चाहिए साइन का, तो साइन को बदलना होगा ना, यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो आ जाएगा कि साइन स्क्वायर ए क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए होगा ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर कॉस स्क्वायर को कॉस ए उतार दिए, साइन स्क्वायर ए को ए वाला लिखेंगे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये -1 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए है ही और यहाँ -1 प्लस हो गया, तो 2 ठो आ गया, तो लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर ए -1। इसको सॉल्व करके देखा जाए, कॉस स्क्वायर ए -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलकर 2 कॉस स्क्वायर ए, और ये -1 का -1 लिख दिए। तो इस तरह से ये cos 2a का आंसर इस फॉर्मेट में आ गया, तो उसको लिख देते हैं यहाँ पर। दिस इंप्लाइज
कि cos 2a इज इक्वल टू, यहां से आ गया cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये भी एक तो बॉक्स में बना देना, ये फॉर्मूला हो गया थर्ड नंबर। फिर जैसे यहां पर लॉजिक निकाले थे कि cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो इससे 2 साइन स्क्वायर a निकालना था, इसको उठा के इधर ला दिए, सब्जेक्ट बना दिए, और इसको उठा के उधर ले गए, तो ये फार्मूला आ गया। तो उसी टाइप का यहाँ भी हमको सब्जेक्ट बनाना है 2 cos स्क्वायर a, तो लिख देंगे 2 cos स्क्वायर a। जैसे 2 cos स्क्वायर a को निकालना है तो इसको RHS में रहने दे रहे हैं, और इसको उठा करके LHS में ला देंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2a, तो देखो 1 प्लस cos 2a। तो इस तरह से एक नया फार्मूला यहाँ पर आ गया, और इस फार्मूला को थोड़ा ऐसे सर्किल बना देते हैं, जैसे अंडाकार टाइप का बना दे रहे हैं, यहाँ भी इसको एक अंडाकार टाइप का बना दे रहे हैं, ये भी फार्मूला है, ठीक है। तो इस तरह से वो 2 एक्स्ट्रा फार्मूला लिखे हैं, भले उसका नंबर नहीं लिखे हैं। और इसी के आगे और बढ़ेंगे तो ये दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो देखो क्या हो जाएगा, साइड में लिख देते हैं, तो आ जाएगा दिस बाई दिस, 2 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर ही आ जाएगा, और ये वाला डिवाइड होगा तो 1 माइनस cos 2a बाई 1 प्लस cos 2a। इस तरह से कभी कभी आता है सब इंटरेस्ट में कि एंगल नहीं बताना नहीं ठीक नहीं, क्योंकि बताना मतलब क्या हुआ कि आपको मैंने रटवाया जा रहा है, वो गलत है, वो आप अपने सोचिए, ठीक है। तो ये फार्मूला आ गया। अब इसी को उल्टा कर डिवाइड करते cos स्क्वायर a बाई साइन स्क्वायर a, तो cot स्क्वायर a हो जाता है, और ये पहले ऊपर न्यूमरेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो आप नहीं कर सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं, tan स्क्वायर तो आपको अच्छा चाहिए। अब आया जाए कि और cos 2a का फार्मूला होता है, वो क्या है, तो फिर से रिपीट करते हैं, अगेन इसलिए लिख दिए, अगेन हम लेके चलेंगे कि cos 2a तो हमको पता है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है, और इसी में आगे डिवाइड कर देंगे क्या चीज़ से, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ये है, इसको डिवाइड करके 1 लिख दे रहे हैं, क्योंकि cos 2a जो इतना फार्मूला सही है फार्मूला 1 से, तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और इस 1 को लिख सकते हैं फिर ये वाला फार्मूला कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है, तो हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, तो पहले न्यूमरेटर उतार देते हैं, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 को लिख सकते हैं, ये वाला आइडेंटिटी यूज कर, तो आ जाएगा 1 की जगह cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और इसके बाद के स्टेप में डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज से, जिसको बोल सकते हैं डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर a इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसके बाद का स्टेप हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, समझ लो कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, पूरे को डिवाइड कर दे रहे हैं cos स्क्वायर a से, फिर यहाँ पर यही वाला उतार दे रहे हैं, तो आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a। मतलब इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे लाए हैं, तो डिवाइडिंग इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर a, और अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, अलग अलग करेंगे, दिस बाई दिस 1 हो जाएगा, और दिस बाई दिस हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a, तो उसको लिख देते हैं, दिस बाई दिस तो 1 हो गया, 1 माइनस, और दिस बाई जगह कम है इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, दिस बाई दिस 1 हो गया, और साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a हो गया, और उसी टाइप का दिस बाई दिस 1 हो गया, और दिस बाई दिस साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर cot स्क्वायर हो गया, सॉरी tan स्क्वायर हो गया, तो tan स्क्वायर लिख देते हैं हम। तो इस तरह से फाइनली हम लोग चले थे cos 2a से, और यहाँ पर आकर के पहुँच गए, तो कहने का मतलब इसको लिख देंगे, दिस implies cos 2a
इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से ये भी एक नया फार्मूला बॉक्स में आ गया, क्योंकि यहाँ से हमने लॉजिक लगाया और पूरा स्टेप के बाद ये आंसर आया। तो जैसे ये फार्मूला नंबर 1 था साइन कॉस के टर्म में, दूसरा फार्मूला था खाली साइन के टर्म में, तीसरा फार्मूला था खाली कॉस के टर्म में, और चौथा में आ गया साइन और कॉस दोनों के टर्म में, मतलब tan के टर्म में। तो इस तरह से ये चौथा फार्मूला हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे कि ये चारों फार्मूला को, जो कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, एक जगह कंपाइल कर देंगे तो ये cos 2a का फार्मूला भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको हम लिखते हैं इस साइड में, और यही लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखा जाए, पहला लिख दे रहे हैं cos 2a यहाँ पर, माने इन शॉर्ट पूरा फार्मूला का कंपाइलेशन करने जा रहे हैं। cos 2a क्या होगा? cos 2a पहला फार्मूला ये लिखेंगे कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये पहला फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला लिखेंगे जस्ट इसके नीचे में, थोड़ा कंट्रास्ट अच्छा हो, आंख में मजा आए, तो इसलिए इसको हम ये वाला लिख देते हैं ब्लू पेन से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और इसके बाद वाला को भी फिर अल्टरनेट कलर कर देते हैं। अब लिखेंगे कॉस के टर्म में, तो ए वाला तीसरा वाला तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और फिर इसको लिखेंगे ये लास्ट वाला फॉर्मूला, तो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से ये फार्मूला आया, इसको हम नाम दे रहे हैं कैपिटल बी। इसके पहले दिए थे साइन 2a वाला लिए कैपिटल ए, तो कैपिटल ए शो कर रहा है कि फार्मूला एट ए ग्लांस, शॉर्ट में बिना ड्राइवेशन का याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद करो। अगर मेरे पास अगर ये पेन रहता दूसरा कलर का, जैसे कि रहता ग्रीन कलर का, अभी मिला नहीं मार्केट से, कुछ दिन लेके आएंगे, तो जब ग्रीन कलर का रहेगा तो जो बॉक्स में रहेगा वही इन शॉर्ट में पूरा ग्रीन में लिखा रहेगा। ठीक है, तो अभी तो नहीं है, तो अभी इसी में मैनेज करो। तो इस तरह से cos 2a का खत्म हो गया, और अब इसके बाद लाएंगे tan 2a और cot 2a, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट कर देंगे। और 3a वाला sin 3a, cos 3a, tan 3a, cot 3a, इसकी मल्टीपल एंगल का सेकंड वाले पार्ट में नेक्स्ट में देंगे। तो अभी हमारा sin 2a हो गया, cos 2a हो गया, अभी और आने वाला है tan 2a और cot 2a, अभी लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके, इसके पहले वाला जो स्क्रीनशॉट लिए थे वो पूरा स्क्रीन था sin 2a का, और ये वाला पूरा स्क्रीन है cos 2a का, और अब जो आएगा tan 2a cot 2a एक ही स्क्रीन में आ जाएगा। तो अब फार्मूला है बच्चों कि तीसरा कि tan 2a क्या होगा। देखा जाए तो इसके लिए भी वही कंसेप्ट वी नो, वही कंपाउंड से, जैसे sin 2a के लिए मैंने यूज किया था sin a प्लस बी, cos 2a के लिए यूज किया था cos a प्लस बी, तो tan 2a का यूज करने के लिए tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का कंपाउंड एंगल से हम लोग जानते हैं कि ये होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये कंपाउंड एंगल से है ना, कहाँ से आया? तो कंपाउंड एंगल, फ्रॉम कंपाउंड एंगल।
ठीक है, फ्रॉम कंपाउंड एंगल कॉन्सेप्ट। जो कंपाउंड एंगल का कॉन्सेप्ट बताए थे उसी का फॉर्मूला नंबर 1 में था साइन ए प्लस बी वाला, 3 नंबर में था कॉस ए प्लस बी वाला, 5 नंबर में था tan ए प्लस बी वाला। तो यही वाला tan ए प्लस बी वाला 5वां नंबर यूज किए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं इसमें, पुटिंग ए इक्वल टू बी। तो जैसे ए और बी को पुट करेंगे तो ये स्टेप में आ जाएगा tan ए की जगह ए रहेगा, बी की जगह ए रहेगा, यहाँ आ जाएगा tan ए, यहाँ हो जाएगा फिर tan ए, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan ए, फिर इनटू में tan ए, और tan ए पता है, ये वाला मिल के हो जाएगा tan 2a, क्योंकि a प्लस ए x प्लस एक्स 2x होता है, तो यहाँ भी हो जाएगा tan 2a, यहाँ tan ए मिल के 2 tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। तो यही इसका कॉम्पैक्ट में हो गया, और कोई फार्मूला नहीं होता। जैसे साइन 2a में तो दो फार्मूला लिखे थे, एक लिखे थे साइन 2a का 2 sin a इंटू कॉस ए, और उसके बाद लिखे थे साइन 2a का 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और उसी तरह cos 2a का लिखे थे 4 ठो, 2 की जगह 4 था। कौन कौन था? एक था cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, उसके बाद था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, उसके बाद था 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और उसके बाद था 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ एक ही फार्मूला आएगा, इसलिए इसी को ए बी और इसको सी लिख दिए। यही हो गया, इन शॉर्ट बोला जाए यही रह जाएगा। ठीक है, अब आया लास्ट, उसके बाद ये वीडियो को दी एंड करेंगे। आज खाली बताएं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल 2a, इसके बाद वाला वीडियो में आएगा sin 3a, cos 3a, tan 3a, cot 3a, और उसके बाद 4a 5a का तो एप्लीकेशन में बनेगा, और जो मल्टीपल समझ गया सब मल्टीपल बनेगा। और अब जाकर के क्वेश्चन आप ये सब टॉपिक्स का घर में अटेम्प्ट करिए। तो अब देखा जाए चौथा नंबर जो लास्ट है कि cot 2a का आंसर्स क्या होगा। तो इसको भरना है, तो इसको भरने के लिए फिर चलेगा उसी तरह का कि वी नो cot a प्लस बी कितना होता है cot a प्लस बी। तो जैसे हम लिख रहे हैं वैसे याद करो, पहले लिखो डिनोमिनेटर cot a प्लस बी है, इसका ऑर्डर बदल दो, पहले लिखो cot b, फिर लिखो cot a, पहले डिनोमिनेटर छापो, छाप दिया कि a प्लस बी है, ब्रैकेट खोल दिए, तो क्या आ जाएगा cot a आएगा, एक तो cot b आएगा, और cot b प्लस cot a लिख दिए, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिख देंगे cot b इंटू cot a, यहाँ प्लस आया, माने यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, यही समझो। और अब यहाँ माइनस लिख देंगे, और अब इसके बाद क्या होगा, तो पुटिंग a इक्वल टू b, पुटिंग a इक्वल टू b, यहाँ हो जाएगा cot a प्लस a, यहाँ हो जाएगा cot a इंटू cot a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a, और फिर आएगा प्लस cot a। इसका नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा LHS में cot a और a मिलके हो गया cot 2a, cot 2a हो गया, और ये cot a इंटू cot a x इंटू x स्क्वायर होता है, तो cot स्क्वायर a माइनस 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा cot a और cot a मिल करके 2 cot a। तो इस तरह से ये फार्मूला, साइन को लिखे थे हम a, कॉस वाले फार्मूला को जिसमें 4 फार्मूला था b, साइन वाला में 2 था, tan वाला में एक ही था, इसको c और इसको लिखेंगे d। तो इस तरह से आज का समझो कि sin 2a, cos 2a, tan 2a, cot 2a पूरा का पूरा लॉजिकली याद करवा दिए,
और घर में आप लोग बिना देखे हुए एक रफ कॉपी उठाओ और सोच लो अपने आप को कि मतलब हमको भी रिवीजन करना है और अभ्यास करो। जरूर एक दिन इसी तरह सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। जब फार्मूले याद हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम बनाने में क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है, वो एप्लीकेशन होता है। और कंसेप्ट क्या होता है, यही तो मेन होता है। किसी भी साल क्वेश्चन फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, जेई में, जे एडवांस में रिपीट नहीं होता है। अब 20 साल में एक तो छोटा सा रिपीट हो गया तो उसको बोलेगा लो रिपीट होता है, वो सब फालतू बात है। कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है, इसलिए कॉन्सेप्ट ठीक रखो। क्योंकि देखते ही हो सब कोई मैथ पढ़ता है, लेकिन कोई लड़का मैथ में 100 लाता है, कोई 100 में 0 लाता है। उसी तरह फिजिक्स, कोई एक से एक फिजिक्स का किताब पढ़ता है और मतलब कोई 0 लाता है फिजिक्स में, कोई 100 लाता है। उसी तरह केमिस्ट्री में है कि दिन भर साल भर पढ़ा, पता चला एक भी नहीं बना, और दूसरा कोई पता चला कुछ नहीं पढ़ के गया, ऐसी परीक्षा में बैठ गया और लॉजिकली थिंक करके मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन बना दिया जितना उसको पास होने के लिए जरूरत है और रिजल्ट दे दिया। अब कितना तो ऐसा होता है कि कुछ नहीं, ABCD देखा, लॉटरी मार दिया और रिजल्ट आ गया, उसको खुद नहीं पता चला रहे मेरा कैसे रिजल्ट हो गया, हम तो कुछ किए नहीं थे, हम तो खाली ABCD जो बुझाया सर बताए थे कि जब कुछ नहीं समझ में आए तो भगवान का नाम लेकर के सब में C मार देना, बस उसी में वो क्वालिफाई कर गए। तो ये सब भी ट्रिक्स है। तो ओके, आज की क्लास को मैं इतने में ही रोकता हूँ और फिर किसी दिन और इसको चाहोगे तो एक तो नेक्स्ट में और लाया जा सकता था। वह क्या है कि जितना 2a का बताए हैं सारा फार्मूला एक जगह कंपाइल हो सकता है। वो कैसे, sin 2a का एक बार जमा होगा, cos 2a का जमा होगा, फिर tan 2a का जमा होगा, cot 2a का जमा होगा। लेकिन हम वो इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि जब मेरा sin 3a, cos 3a, tan 3a, cot 3a जब वो भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, एक बार बड़ा पूरा स्क्रीन पर सारा फार्मूला मल्टीपल का, जिसमें 2a का भी पूरा फार्मूला और 3a का भी पूरा फार्मूला लिखेंगे। इसलिए इसको हम कंपाइल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो फ्रॉम रिलेशन A, B, C एंड D एक जगह कंपाइल करके याद कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से ये एक हो गया और कोशिश करते हैं थोड़ा सा उसको लिखने का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब देखा जाए, इसके बाद का हम वाला लिख देते हैं। जितना आपने लिखोगे उससे बेहतर है कि मैं ही लिख के एक दिखा दूं कि फार्मूला एट ए ग्लांस। वो तो ओवरऑल 2 या 3a के बाद लाएंगे, अभी खाली लिख रहे हैं फार्मूला इन शॉर्ट। एट ए ग्लांस ओवरऑल को लिखते हैं। तो इन शॉर्ट में देखो क्या क्या आया। तो पहला था sin 2a वाला, तो ऐसे लिखना चालू करते हैं, sin 2a, 2 sin a इंटू cos a। दूसरा फॉर्मूला था जो 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये पहला था sin 2a का। और अब लिखेंगे cos 2a का। तो cos 2a का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। cos 2a का था cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और इसके बाद था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और एक था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसके बाद था 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस तरह से ये फार्मूला कंपाइल हो गया cos का। ये पहला हो गया, इसको लिख देते हैं यहाँ पर a, ये लिख देते हैं b, और अब लिखेंगे c, sin cos tan cot। तो tan के लिए यहाँ लिख देते हैं, तो tan के लिए आ जाएगा यहाँ पर tan 2a, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan 2a का फॉर्मूला। क्योंकि ये फार्मूला कैसे हुआ है, तो जो फार्मूला था tan a प्लस b, तो tan a प्लस b रिकॉल करो,
तो tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B, वही मेमोरी में रखो। और tan A प्लस tan B की जगह हमने क्या किया, tan A लिख दिया तो 2 tan A लिख दिया। और नीचे में था 1 माइनस tan A इंटू tan B, 1 माइनस tan A इंटू tan B को tan A करके लॉजिकली लिख दिए। और लास्ट फॉर्मूला है cot 2A का, cot 2A इसको लिख देते हैं, C नंबर है ये C नंबर था। और अब लास्ट आ रहा है D नंबर, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो आ जाएगा कि cot 2A क्या है। तो इसको भी लिखने के लिए मेमोरी में रखो फार्मूला cot A प्लस B, और उसको रखो कैसे, जैसे हम रख रहे हैं इमेज में, देखो बताते समझ जाओगे। हम मन में क्या सोच रहे हैं वो देखो यहाँ लिख देते हैं। पहले मन में मेरा प्रिंट हो रहा है कि cot A प्लस B क्या होता है, अंतर मन में जो सोच रहे हैं माइंड में, तब ना बाह्य मन में आएगा। ये जो हम लिख रहे हैं बाह्य मन में लिख रहे हैं, लेकिन सब चीज अंतर मन में चल रहा है। तो अंतर मन में साइकोलॉजी के रूप में समझो कि वो क्या चल रहा है। तो अंतर मन में हमारा बैठा हुआ है cot B प्लस cot A, और अंतर मन में ही बैठा हुआ है cot B इंटू cot A माइनस 1। अरे जो अंतर मन में होगा वही बाह्य मन में होगा, और जो बाह्य मन में होगा वही अंतर मन में है। अंतर मन ही तो सोचो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो गया, और जो बाह्य मन है, बाह्य जो सोचते हो वही तो फिजिकल वर्ल्ड है। तो हमको यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड में समझाना है, लेकिन हम तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसको सोच के रखे हुए हैं कि इस फार्मूला को कैसे लिखना है। तो आप सोचोगे ये सब तो याद है, बहुत कुछ याद नहीं है बाबू, लॉजिक है। और उसी लॉजिक से ही सारे फार्मूले फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का बिना देखे हुए मजे से लिखेंगे। और आप भी लिख सकते हो। मेहनत करो, परिश्रम करो, और लेबर नेवर गोज इन वैन, परिश्रम आपका कभी भी बेकार नहीं जाएगा। मेहनत तो करो। ओके, तो मेरे मन में जो अंतर मन में बात थी कि कैसे आप सर याद कर रहे हो, लॉजिक तो बताइए। तो हमने क्या सोचा मन में कि cot A प्लस B का फार्मूला डिनोमिनेटर में पहले लिखते हैं cot B प्लस cot A, ब्रैकेट खोलने के बाद, और इसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 लिखे हैं। यही वाला लॉजिक से अंतर मन में ये सोचे हम, और बाह्य जगत में बच्चों को सिखाने के लिए, लोगों को वीडियो में सिखाने के लिए मन में रखे हैं, और मन में रख करके ही आंसर छाप रहे हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है वो, तो वो हो जाएगा यहाँ पर cot B और A दोनों सेम है, तो cot A मिलके नीचे हो गया 2 cot A, है ना, ये cot है 2 cot A। और यहाँ क्या होगा, A और B बराबर कर देंगे तभी ना ये cot 2A आएगा। तो इसीलिए ये cot A इंटू cot A, cot स्क्वायर A हो गया। और इसी के बाद आ जाएगा -1। तो इस तरह से जिसको आप सोच रहे हो मैजिक, वाह बिना देखे सर तो बड़ा मजा से लिख दे रहे हैं फार्मूला, हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं। हम कोई मैजिक नहीं कर रहे हैं, ये अपना इतना दिन का मेहनत, इतना दिन का अभ्यास, इतना दिन का लॉजिक, इतना दिन का सोच, इतना मैंने सोच सकते हो कि धारणा, ध्यान, समाधि, जो भी समझो इसको, तो कंसंट्रेशन होना चाहिए। और दिखाई दिया ये सारे जो फार्मूले हैं किसके लिए था, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल 2A। एक हो गया साइन का 1 नंबर, 2 नंबर में हो गया कॉस वाला, 3 नंबर में tan का, और 4 नंबर में cot का। और ये पूरे को एक मतलब बड़ा सा एक डायग्राम में, ऐसे ब्लॉक डायग्राम में इसको बंद कर दिए। तो अब देखो दिख रहा है कि एक ब्लॉक डायग्राम के अंदर में सारा फार्मूला है। तो जब sin 3A का लिखोगे यहाँ पर, cos 3A का यहाँ लिखोगे, tan 3A का यहाँ लिखोगे, cot 3A का यहाँ लिखोगे, तो घर में कोशिश करो कि sin 3A का सर हम अपने कोशिश कर रहे हैं बिना देखे हुए। और जब 3A का हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे विथ प्रूफ, तब उसके बाद ये 2A वाला 4 फार्मूला और 3A वाला 4 फार्मूला वो पूरे स्क्रीन पर आधा में दिखाएंगे 2A का इधर में, और आधा में दिखाएंगे इधर में 3A का, और ऊपर में हेडिंग रहेगा कि मल्टीपल एंगल फार्मूला एट ए ग्लांस। तो आज का इतना ही।
फिर देखा जाएगा इसके बाद वाला जो 3a थ्योरेटिकल रेशियो ऑफ एंगल 3a। तो आज के लिए इतना ही, एंजॉय करो और इसी में मेहनत करो और कोशिश करो कि सारे फॉर्मूले याद हो जाए। और न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड जितने भी हैं मल्टीपल का, किसी भी बुक से, हम ये बुक का नाम नहीं देंगे, आप जितना बुक से ज़्यादा बनाओगे उतना अच्छा है। अभी हम बोल देंगे कि टीमेज बनाओ तो स्वाभाविक इतना जल्दी तो बनेगा नहीं। हाँ, न्यूमेरिकल आइडेंटिटी जब ये पूरा मेरा खत्म हो जाएगा कंप्लीट एक चैप्टर्स जिसके अंदर में 11 ठो है, तब हम देंगे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बहुत रिसोर्सेज से। अभी छोटे छोटे चैप्टर से आप अपने टेक्स्ट बुक से जहाँ भी मिले कोई भी बुक्स, हम बुक का कोई जान उसके नाम नहीं बता रहे हैं, ताकि आप जेईई एडवांस का, जेईई मेन का, स्कूल का जितना भी रिसोर्सेस है, क्वेश्चन देने का जरूरत क्या है, क्वेश्चन तो लाखों करोड़ों है, लेकिन कॉन्सेप्ट अनलिमिटेड होता है। तो आज का इतना ही रखो। ओके, थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ। और नेक्स्ट क्लास में हम लाएंगे थ्योरेटिकल रेशियो ऑफ एंगल 2a, और वो सब खत्म हो जाएगा तब हम लाएंगे सब मल्टीपल एंगल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।